دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہیلو، ہاں جی بتائیے، آ رہی ہے میری آواز؟ آ رہی ہے آواز، ہاں آ رہی ہے آواز۔ ارے انیس دیوبندی، میں نے 4-5 چیلنجز کیے ہیں، تو کئی سمجھنے کا مہینہ بھر ہو گیا شاید، یا 15-20 دن تو ہو ہی گیا ہوگا کہ کوئی دیوبندی ہاتھ تک نہیں لگا رہا ہے۔ میں نے چیلنج یہ کیا ہے کہ ذریت دیوبندیت میں جتنے بھی ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک، تو اس کو جس موضوع پر مہارت حاصل ہو اس پر اپنے مسلک کا موقف پیش کر کے اور دعویٰ ماحکم پیش کر کے مجھ سے بات کر لے اور خود کو حق پر ثابت کر دے، میں اپنی شکست لکھ کر کے دے دوں گا۔ یہ تو مسلکن ہو گیا۔ پر یزید پر، علوم خمسہ پر، اعلیٰ حضرت کے کفر کے تعلق سے یہ بولتا ہے نا تمہارے حقانی، میں نے اس پر بھی چیلنج کیا ہے کہ ذریت دیوبندیت میں جتنے بھی ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک، وہ جو ہے اعلیٰ حضرت رحم اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے اپنے مسلک کا موقف پیش کر کے اس پر حکم لگا کر کے دعویٰ پیش کر کے ماحکم جو ہے اعلیٰ، میں نے میرا چیلنج جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ذریت دیوبندیت بعد میں سنو، پہلے میرا چیلنج تو سن لے۔ اچھا تم ذریت میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، مطلب یہ بہت سنو نہیں تو نے کہا بہت ہے، تو اب میرا چیلنج سن کہ ذریت دیوخناسیت میں جتنے بھی حلالی ہے، میں کسی حرامی کی بات نہیں کرتا، اگر کوئی حلالی ہے تو اپنے مسلک کا موقف پیش کر کے اپنا دعویٰ ماحکم پیش کر کے اعلیٰ حضرت رحم اللہ تعالی علیہ کو کافر ثابت کر دے، میں اپنی شکست لکھ کر کے دے دوں گا۔ اگر کوئی حلالی ہے تو قبول کرے میرا چیلنج۔ ہاں اب سنو میری بات، ہاں بولو۔ آپ کا جو یہ دعویٰ ہوگا نا تو آپ کو ہمارے گھر سے چیلنج ہے میرا، چیلنج ہے نا، آپ کو ہمارے گھر کی طرف نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ ارے کیوں نہیں آنا؟ میں سنو، جب کوئی چیلنج کرتا ہے، میری بات سنو، جب کوئی جو چیلنج کرتا ہے وہ دوسرے سے کرتا ہے، ہمارے اکابر ہے جو وہ تمہارے لیے حجت ہے؟ حجت نہیں ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں کرنے کے لیے کوئی حلالی ہے تمہارے مسلک میں؟ یہ بتاؤ تم، تمہارے جو اکابرین ہے، ارے سنو نا یار، تمہارے جو اکابرین ہے تمہارے لیے حجت ہے کہ نہیں؟ جب تمہارے گھر سے کافر ثابت ہو رہے تو ہماری طرف کیوں آ رہے؟ تم ایمان ثابت کرنے؟ نہیں یہ بتاؤ، سنو، تمہارے اکابرین تمہارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں حجت ہے۔ تم اپنے اکابرین کے منہ پہ پیشاب کر دو گے؟ نہیں ہمارے لیکن تمہارے میری بات سنو، میری ارے تیرے لیے حجت ہے نا، اس لیے تیرے گھر سے تجھے آئینہ دکھاتا ہوں میں۔ نہیں جب تمہیں ایمان کی ضرورت پڑتی ہے تو تم بھاگتے ہو۔ ارے جاہل، ہم ایمان کا ثابت کر رہے ہیں، تمہارے دیوبندی مولوی کے پاس جائیں گے؟ یہ بتاؤ، ایمان ثابت ہوتا ہے وہ اکابرین کی عبادت سے ثابت کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے۔ جب تمہارے اعلیٰ حضرت تمہاری اکابر کی روشنی میں کافر ہے تو تم ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں ایمان ثابت کرنے؟ سنو، یہ جو تمہارا دعویٰ ہے نا، یہ دعویٰ تمہارا ایسا ہے کہ تم اپنے اکابرین کے منہ میں پیشاب کر دیتے ہو، کیونکہ تمہارے اکابرین کا دعویٰ ہے کہ وہ سنو، نہیں سنو، پہلے بات سنو، ہمارے اکابر آپ کے لیے حجت نہیں ہے تو آپ تو مطلب تم سچے ہو یا تمہارا اکابرین سچا ہے؟ تمہیں اپنے اعلیٰ حضرت کو ایمان ثابت کرنا ہے نا تو اپنے بزرگوں سے کرنا پڑے گا ثابت، ٹھیک ہے؟ اے او جاہل دیوبندی، میں یہ پوچھ رہا ہوں، تو کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان جو ہیں وہ کافر ہیں، اور تمہارا اکابرین کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، عاشق رسول ہے، تمہارے لیے کون ہے؟ ارے جاہل، دیکھو تمہارا مذہب، اچھا یہ بتاؤ، تمہاری جو کتاب ہے کہ مسلک دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں، قرآن و حدیث کا نام ہے، اس میں کہتا ہے جو اکابر دیوبند کی مخالفت کرے
और उसकी पैरवी न करे तो वो मसलक देवबंद से जो है तो देवबंदी नहीं है। उन्होंने उनकी किताबें नहीं पढ़ी ना, इसलिए वो उनको मुसलमान मानते थे। वो चल सुनो, जब उनकी किताबें नहीं पढ़ी है तो थानवी साहब कैसे लिख दिया कि वो हमें काफिर कहते हैं, हम उसे काफिर नहीं कहते। जब थानवी नहीं पढ़ी किताब, उसको कैसे पता चला कि इमाम अहमद रज़ा उन्हें काफिर कह रहे हैं? तुम्हारे नजदीक थानवी रहमतुल्लाह अलैह क्या है? अरे सुनो, तुमने कहा कि थानवी ने मेरे नजदीक बदतरीन काफिर है, जो उसके कुफ्र करे, उसकी इबादत को जानने के बावजूद वो भी उसके लिए पड़ा हुआ काफिर है। अच्छा, तो फिर तुम सुनो, अब एक काफिर से तुम मुसलमान साबित कराओगे अपने आला हज़रत को? क्या चीज? तुम अपने एक काफिर है ना तुम्हारे नजदीक, तो नहीं, अभी सुनो, अभी काफिर और सुनो पहले, तुम पहले बोल लो, बोल लो पहले, मेरी बात सुनो पहले। जब तुम उनको अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहते हो, ठीक है, तो तुम उनको आला हज़रत को उनसे मुसलमान साबित क्यों करा रहे काफिर से? सुनो, हो गई तुम्हारी बात। जो तुम्हारे जो उलमा है ना, उनके नजर में साबित करवाओ मुसलमान। अरे तुम्हारी बात हो गई तो मैं बोलूं? हाँ बोलो। सुनो, अभी तो हम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुसलमान साबित कराने पर अभी नहीं जा रहे हैं हम। अभी मसला ये पेश आ रहा है कि तुम कह रहे हो कि वो काफिर है, और तुमसे बड़े जिसकी तुम पैरवी करती हो, अगर उसकी पैरवी ना करो तो मसलक देवबंद से तुम खारिज हो जाती हो। तो तुम्हारे बड़े जो उनका दावा है वो कहता है कि मुसलमान है, तुम कहते हो काफिर है। तो पहले इस बात को हम वाज़ेह करना चाहते, सुनो, इस बात को हम पहले वाज़ेह करना चाहते हैं कि बात तुम्हारी सच्ची है या उसकी सच्ची है। जब इस बात की तुम वजाहत कर दोगे फिर हम दलील पेश करेंगे। अभी मुसलमान और कुफ्र इस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। अभी तो तुम्हारे दावे पर बात कर रहे हैं कि जो तुम्हारा दावा है वो तुम्हारे अकादरीन के दावे से हट करके है। तो बात ये आ गई कि इसमें किसकी बात सच्ची है, तुम्हारी बात या तुम्हारे अकादरीन की बात? अब मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। अल-मुहन्नद में तुम्हें शैतानी गिरोह करार दिया है हमारे अकादरीन। अरे ये तुम्हारी झूठी किताब है, उस किताब झूठी। अच्छा, मारो तुम्हारी सच्ची किताब है। हाँ, तुम्हें शैतानी गिरोह करार दिया है। सुनो, तुम अरे सुनो, शैतानी गिरोह। अरे फिर अब तुम अल-मुहन्नद की बात की तुमने ना, अब इसका भी जवाब ले ले। तुम्हारी अल-मुहन्नद ऐसी गढ़ी हुई किताब है और इतनी बदबूदार किताब है कि उसमें तुम्हारा मौक़िफ़ तज़ाद में है, फांसी के फंदे में लगता है तुम्हारा मौक़िफ़। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। सुनो, अब सुन लो, दिन थाम के सुनो। तुम्हारा रशीद अहमद गंगोही लिखता है कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले को वहाबी कहते हैं, उसका अकीदा उम्दा था। फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही तुम्हारा खुतबे आलम कहता है। और तुम्हारी घिनौनी बदबूदार किताब में तुम्हारे मौलवी लिखते हैं कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी खारजी था, खारजियों वाला हुक्म है, वो बागी था। तो तुम्हारी इस किताब से तो तुम्हारा मौक़िफ़ की मुखालिफत साबित हो जाती है। उसमें तुम्हारी ये किताब कैसे हक पर हो सकती है? वो तो सुनो, वो तुम्हारे लिए थोड़ा लिखा है, विद्यार्थियों के लिए। अच्छा, तो मतलब अकीदा उम्दा किसका है? तुम्हारा। तुम देवबंदियों का अकीदा उम्दा नहीं है? क्या अकीदा है क्या उसमें? जो अहले वाले है ना, उसके बारे में लिखा है ना, ठीक है। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी के अकीदा को उम्दा बताया। तो अब तू कह रहा है कि वहाबियों के अहले हदीसों के लिए है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम देवबंदियों का अकीदा सड़ा हुआ है, तुम मानते हो? जब तुम्हें तो शैतानी गिरोह करार दे दिया ना। किताब मैंने साबित कर दी, मैंने किताब का तुम्हें हवाला दिया, मैंने साबित किया ये किताब झूठी किताब है, बदबूदार घिनौनी किताब है, कि तुम्हारा ही मौक़िफ़ तुम्हारी किताब में नहीं मिलता है। ये कुछ किताब में कुछ और है, उस किताब में कुछ और है। ये बताओ, इब्न अब्दुल वहाब नजदी का अकीदा अगर आपके कॉल को रखा है, कृपया लाइन बनी रही। किसी को ले रहा है, ठीक है। क्यों तुम्हारे दलाल नहीं आए? अभी नमाज का टाइम है ना, नमाज का टाइम है अभी। चलो इसमें तो इतना मुझे बता दो कि आपके मौलवियों का दौरे हाजिर के जो मौलवी है उसका दावा दुरुस्त है या आपके अकादरीन का दावा दुरुस्त है? दोनों में सच्चे कौन है? जब तक यहाँ आप वाज़ेह नहीं करेंगे अपनी बात, तब तक आगे बात नहीं जाएगी। तो हमारे और सुनो, आप इतने बड़े जाहिल हैं, आपको पता नहीं कि इल्जामी जवाब दिया जाता है मुनाजरे में। मुनाजरे का फन है ये। क्योंकि हक वो है, सच वो है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे, वो बात मुतबर हुआ करती है। तो तुम्हारे अकादरीन जो है इमाम अहमद रजा खान की ईमान की गवाही देते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे अकाबिर है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ
कि तुम बकौल तुम्हारे मौलवियों के उसूल के तुम्हें ज्यादा मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बड़े मानते हैं, और तुम अपने बड़ों को छोड़ दोगे तो तुम अपने मसलक से खारिज हो जाओगे। या तो फिर तुम अपने आप को देवबंदी से हटा हुआ मान लो, या फिर अपने आप को सच्चा मानो, या अपने अकाबिर को सच्चा मानो। तीन बातें हैं इसमें। हाँ, एक मुसलमान तो एक मानने वाले मुसलमान हूँ मैं, तो दूसरे को भी जो मुसलमानों को भी सोचूंगा कि भाई ये मुसलमान ही होगा, मुझे क्या पता ये अंडरग्राउंड का फिर है। अरे भाई हम सबको कहाँ कहते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं आप बनीर देवबंदी, हम सबको काफिर नहीं कहते हैं। चार देवबंदी मौलवी है, पहले हमारा मसलक समझ लो, हमारा मजहब और मसलक समझ लो कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। चार देवबंदी मौलवी, जिसमें अशरफ अली थानवी है, रशीद अहमद गंगोही है, कासिम नानोतवी है, खलील अहमद अम्बेडवी है, इनके इबारात को जानने के बाद, समझने के बाद, फिर भी इन मौलवियों की वो तायद करता है, ताज़ीम करता है और उसके कुफ्र में शक करता है, तब हम ऐसे शख्स को काफिर मानते हैं। और जो हैं जिसको पता ही नहीं है उसको हम काफिर नहीं मानते, उसको गुमराह मानते हैं। हाँ बोलो। अब सुनो, एक बात हो गई आपकी। अब आप जो आपका जो है ना दावा है ये आला हज़रत के बारे में, कुफ्र के बारे में, आला हज़रत के कुफ्र के बारे में, आप इनको चार अकाबिर को छोड़ के ना फिर मुसलमान करके दिखाओ हमें, ठीक है? किसको? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान सुनो, हम कहते हैं कि कुफ्र जब इनके सुनोगे, मेरी बात सुनोगे? तुम तो बोल चुके, मेरी बात सुनोगे आप? पहली बात तो ये है, नहीं, पहली बात तो ये है कि जब कुफ्र साबित किया जाता है तो कुरान और हदीस से साबित किया जाता है कि कुरान और हदीस से हट करके साबित, कुरान और हदीस से भी साबित होगा इंशाअल्लाह। पहले बताओ, किसी का कुफ्र साबित करने के लिए सबसे अव्वल दर्जे पे क्या दलील होनी चाहिए? जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, ठीक है? अरे तो अव्वल दर्जे की दलील क्या होनी चाहिए? कुरान हदीस होनी चाहिए ना। हाँ, कुरान हदीस से भी साबित होगा। और तुम्हारे मैंने वो भी नहीं सुना। सुनो, अब मेरा एक और चैलेंज सुन लो। दुर्रियत, देवबंदियत, देवखन्नासियत में अगर कोई हलाली पैदा हुआ है, इमाम 15 मिनट के बाद को कुरान और हदीस के रोशनी में काफिर साबित करके दिखा दे। अपने दारुल देवबंद के फतवे से, दारुल उलूम देवबंद के फतवे से काफिर साबित करके दिखा दे। हाँ ठीक है इंशाअल्लाह। ठीक है, अगर कोई हलाली पैदा हुआ है तो समझना है कि पैदा नहीं हुआ, सब कौन उठा लेना? अरे कौन उठा लेना, ठीक है? अरे फोन क्या, तू हलाली है तो फोन लगा देना। और मेरे नमाज का टाइम है ना। ठीक है, चलो ठीक है, तो 15 मिनट बाद बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है इंशाअल्लाह। ठीक है, फोन उठाना, भागना मत उस वक्त। हेलो।